12 to 3 o'clock is the time when your body की अग्नि is at its maximum. So आप 12 से 3 के बीच में जो भी खाना खाते हैं उसका डाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है और वो आपकी बॉडी को लगता भी है. आप अगर उतना इम्पोर्टेंट पीरियड को मिस कर रहे हैं then there is no point of fasting. Hi and welcome to our show and I'm your host Shakurika Bhattacharya. एक बार फिर हाजिर हूँ डॉक्टर तरनदीप हमारी फिटनेस एक्सपर्ट के साथ एक नए टॉपिक को लेकर. आजकल हर कोई डॉक्टर फिटनेस को लेकर बहुत परेशान है और उसको लेकर चाहे वो सोशल मीडिया है या लोगों से बातचीत है, दे जस्ट वांट टू रिड्यूस फैट, वेट लॉस, और जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है. राइट फ्रॉम इंजेक्टेबल्स टू डूइंग ऑल काइंड ऑफ डाइट्स, वेदर इट इज इंटरमीडिएट, कीटो, टू एवरीथिंग. लेट्स डिस्कस दिस टुडे. Sure. सबसे पहला सवाल, हाउ मच कीटो इज यूजफुल फॉर ह्यूमन बॉडी? See, keto diet is basically, it's a very high protein diet, and the only thing is that in this diet there are no carbs whatsoever. So carbs are your source of energy, so you just can't eliminate entirely from your diet. See, every macronutrient is supposed to be there in your diet and it's there for a reason. So the people who are on keto diet, because they are not having carbs at all, they do not have any energy at all, so they do not exercise at all. So mind you, the people who are put on keto diets are strictly given instructions. They cannot, because the body doesn't have any energy. So it's very unhealthy and it's putting a lot of pressure on your kidneys, because to digest that much amount of protein you are putting a lot of stress on your kidneys, which they are not used to it. Absolutely. Every organ functions but they have their own limits. So it's a very unhealthy diet in the long run. It's an easy way to lose weight, I agree to that, but it's definitely not healthy for your body at all. सबसे पहला अलार्मिंग सिचुएशन, सो जितने भी हमारे कीटो प्रभावी लोग हैं वो जरा थोड़े से जागरूक हो जाए. बट डेफिनेटली एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, सो द साइड इफेक्ट्स आर डेफिनेटली देयर. नाउ कमिंग टू द इंटरमीडिएट फास्टिंग, आई थिंक ये तो मेरे ख्याल से राइट फ्रॉम 18 ईयर ओल्ड टू अ 45 ईयर ओल्ड, everybody is going for this and they are going crazy. इसके भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ रिपरकशंस होते ही होंगे, और कितना हेल्दी रहता है ये करना, क्या वाकई में इससे ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं? So when we talk of intermittent fasting, in this diet you have an 8-hour of eating period and rest of the time you are 12 hours you are supposed to diet, rest of the 16 hours basically including your sleep. The thing is that it was made for जो था कि ये आपकी शुरू होनी चाहिए सनराइज से और सनसेट से पहले पहले आपका ईटिंग पीरियड होना चाहिए. बट लॉट ऑफ पीपल आर अब्यूजिंग इट. लोग समझते हैं कि हम रात का आखिरी मील 10 बजे खा लेंगे तो हम उसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे और हमारा नेक्स्ट मील होगा दोपहर के 3 बजे. दे डोंट रियलाइज दैट द पीरियड 12 to 3 o'clock is the time when your body की अग्नि is at its maximum. So आप 12 से 3 के बीच में जो भी खाना खाते हैं उसका डाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है और वो आपकी बॉडी को लगता भी है. आप अगर उतना इम्पोर्टेंट पीरियड को मिस कर रहे हैं then there is no point of fasting. Right. And plus it is not meant for everybody. People who have acidity, it is not good for them. When we talk of Ayurveda also, उसके अंदर भी जैसे 3 दोषास के होते हैं लोगों को, जैसे वता, कपा, पित्ता. So जो वता प्रवृत्ति वाले होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही फास्ट होता है. Absolutely. Like I am a vata pravati. So I need food all the time. So my body is so active. So I have to eat constantly. So I cannot do. वो बात अलग है कि इनको खाने की जरूरत हमेशा रहती है. मुझे देखिए कोई भी कह सकता है कि खाना लगता है. Jokes apart, yes. So intermittent fasting is again not meant for everyone. It might suit a few people, but it is not advisable for everyone. Please consult your doctor, dietitians or your Ayurvedic doctor before going for it. It can have a lot of bad repercussions as well. यानी कि इंटरमिटेंट के लिए भी आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए. कोई आपका सगा संबंधी या कोई दोस्त अगर कर रहा है, दैट डजंट मैटर, दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग द सेम, क्योंकि जरूरी नहीं है जो उसका बॉडी टाइप है वो आपका है, उसका मेटाबॉलिज्म पावर जितना है वो आपका रहे. सो ये आपके ऊपर डिपेंड, आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप कितना खाने को पचा सकते हैं और कौन सा डाइट करने पे आपके लिए बेस्ट रहेगा. बिल्कुल. इंजेक्टेबल्स आर आल्सो देयर फॉर वेट लॉस.
Will that also work, or that's an alarming thing कि weight loss के लिए आप injects ले रहे हैं? Definitely, I do not advise that at all, because something which is unnatural, is definitely not. It will have a lot of side effects in the long run. So that's something I would never ever advise. So injectable से थोड़ा दूर रहें. Injection तभी लगाएं जब टिटनेस का टीका लगे. बिल्कुल. बट उससे ज़्यादा तो आप वेट लॉस के लिए आई थिंक मेरे ख्याल से लोगों के साथ ये भी रहता है, विच आई हैव सीन मेनी ऑफ देम, कि आप योगा भी कर रहे हैं क्योंकि कहते हैं योगा से होगा, और साथ साथ आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं. और कुछ कहते हैं जो या योगा करेंगे तो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम योगा नहीं करेंगे. सो ये बैलेंस आउट भी तो एक मुश्किल चीज़ होती है. इसको करना ज़रूरी होता है क्या? आई रियली वांटेड टू नो दिस. बिल्कुल. सी, योगा के अपने बेनिफिट्स है. योगा आपकी इट्स वेरी गुड फॉर योर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेल-बीइंग, बट एट द सेम टाइम यू स्टार्ट लूजिंग अ लॉट ऑफ मसल आफ्टर 30 एंड आफ्टर 40 तो इट्स रियली अ लॉट. तो आपको जो मसल गेन करने के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको दोनों का बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. तो योगा along with weight training will give you very good results, because योगा से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, बट जिम में भी वेट ट्रेनिंग वगैरह से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, एंड्योरेंस मिलती है और मसल मास मिलता है. तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही लीथल है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी. सो यू शुड नॉट बी वेरी स्टॉन्च कि सिर्फ मैं योगा ही करूँगा या करूँगी या फिर मैं सिर्फ जिम करूँगा. दोनों को करने से बहुत ही आपको फ़ायदे होते हैं. लाइक आपके कूल डाउन के अंदर अगर आप योगा स्ट्रेचेस एवरी डे आफ्टर योर वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इफ़ यू इंक्लूड द स्ट्रेचेस, उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है और मसल्स भी एलोंगेट होते हैं. तो इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही फ़ायदेमंद है. दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और मेरे ख्याल से ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखने की बेहद ज़रूरी है. तो अगर ये आप सोच रहे हैं कि हाँ योगा करेंगे तो एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज तो योगा नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो इसके लिए भी मेरे ख्याल से पर्टिकुलर, जैसे कि आपने कहा खाने की बात पे हम वापस आते हैं, देयर इज अ पर्टिकुलर टाइमिंग. सो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि खाने का टाइमिंग्स क्या, आइडियल टाइमिंग क्या होना चाहिए सबके लिए, सो दैट इट इज ईजी फॉर द राइट एक्टिव मेटाबॉलिज्म? So as I have mentioned earlier when we were talking of intermittent fasting also, कि sunrise and sunset, so these are the two important parameters that you should consider while having your meal. So ideally if you have your last meal before the sunset and you start your day when the sunrise is there, you have your first meal by then. So that is very good for your body. यानी कि सुबह के 6 और शाम के 6 आइडली यही. बट 6 से 8 टू बी रियलिस्टिक, एनी टाइम बिटवीन 6 to 8 आई वुड स्टिल से 8 to 8 इज ऑल्सो अ गुड टाइम इफ यू कैनॉट बी कैनॉट फॉलो 6 to 6. People like us can follow 8 to 8, but 6 to 6 I was like raising my eyebrows. Okay, फिर तो कभी नहीं हो पाएगा. But नहीं, jokes apart, I think अगर आपको वाकई में you need a good physique and a figure, you need to maintain few things. और मेरे ख्याल से हर डाइट आपके लिए नहीं बनी. Please consult the doctor, please consult your dietitians and I think your nutritionist and fitness experts. एंड इससे मेरे ख्याल से वही आपको सही सलाह दे पाएंगे. आपकी बॉडी के अनुसार ही आपके डाइट्स होने चाहिए, आपका एंटायर रिजीम होना चाहिए. वेल, थैंक यू सो वेरी मच डॉक फॉर द इंसाइटफुल थॉट्स एंड डेफिनेटली अबाउट द 6 to 6 थिंग. माई प्लेजर. वेल, आज के इस एपिसोड में जो कि काफी मजेदार भी था, काफी इंसाइटफुल भी था, क्योंकि मुझे काफी सही चीजों के बारे में नहीं पता था, बिकॉज आई वाज अबाउट टू गो फॉर सम डाइट्स. लेकिन अब मैं शायद सोच के डॉक से ही बात करके जरूर करूंगी. आप भी जरूर सोचिए. अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप हमें जरूर भेज सकते हैं. वी विल डेफिनेटली कम अप विद द क्वेश्चंस एंड द क्वेरीज. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.